حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کے عرس کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ زائرین کے لیے گورنر سندھ کی جانب سے شربت کی سبیل لگا دی گئی۔ مزید جانتے ہیں محمد حماد سے جو مزار کے احاطے میں موجود ہیں۔ جی حماد۔ جی دیکھیں بالکل حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کا 1294ویں عرس کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ میں اس وقت جو ہے مزار کے احاطے میں موجود ہوں، جہاں پر زور و شور سے جو زائرین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جن کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ نہ صرف کراچی بلکہ پوری دنیا اور ملک بھر سے جو ہے زائرین یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ جو اس کا افتتاح ہے اس کا وہ گورنر سندھ جو ہے کامران ٹیسوری کریں گے، اور گورنر کی جانب سے جو ہے یہاں پر پانی اور شربت کی سبیل بھی لگائی گئی ہے، جس میں دودھ کا شربت، پانی اور جوس کے ڈبے اور کولڈ ڈرنک بھی جو ہے وہ یہاں پر زائرین کو دی جا رہی ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مناظر جو یہاں پر رضاکار ہے یہاں پر جو ہے وہ ٹینکیوں میں پانی ڈال کر شربت بنا رہے ہیں، اور لوگوں میں یہاں پر جو ہے وہ شربت تقسیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے جو ہے گورنر سندھ کی جانب سے یہ سبیل لگائی گئی ہے۔ دودھ کی سبیل بھی ہے، اس میں دودھ کا شربت بھی جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بزرگ، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا 3 روزہ یہ عرس ہے، کیا دیکھتے ہیں اس عرس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہے؟ آپ یہاں پر آئے تینوں دن آتے ہیں، یہاں پر لنگر کا کیسا اہتمام ہوتا ہے؟ شربت کا کیسا، سبیل میں جو شربت دیا جاتا ہے اس کا کیسا اہتمام ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ میں تقریباً 5-6 سال سے ہر سال آ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے یہاں پہ، بہت اچھا کام ہے۔ سبیل بھی چل رہی ہے گورنر صاحب کی طرف سے، اور میں تقریباً خیرپور ضلع سے آیا ہوں، کوٹ لالو سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نہ صرف کراچی بلکہ جو ہے دوسرے شہروں سے بھی جو زائرین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آنا شروع ہو چکی ہے۔ اور میرے عقب میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے گورنر صاحب کی جانب سے جو ہے یہ سبیل لگائی گئی ہے، جس میں دودھ کا شربت، روح افزا، لیمبو پانی اور جو ہے وہ جوس کا جو ہے وہ اہتمام بھی یہاں پر کیا گیا ہے۔ جو زائرین یہاں پر آ رہے ہیں وہ یہاں پر جو ہے اس سبیل پر رک کر جو ہے وہ شربت اور جو ہے پانی پی سکتے ہیں۔ تو تمام تر تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں۔ گورنر سندھ جو ہے باقاعدہ طور پہ خود جو ہے یہاں پر آئیں گے اور اس کا افتتاح کریں گے۔ جی صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ غازی کا 1294واں عرس جاری ہے۔ مزار کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور خوشنما چراغوں سے سجا دیا گیا۔ 3 روزہ عرس کا باقاعدہ آغاز گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کریں گے۔ ہمارے نمائندے فاران خان اس وقت مزار پر موجود ہیں، تفصیل جانتے ہیں ان سے۔ جی بالکل، صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کا جو وہ عرس 1294 یہ عرس ہے۔ اس وقت میں آپ کو عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پہ عرس کا جو وہ باقاعدہ افتتاح اب سے کچھ دیر بعد گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کریں گے، جبکہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے اس دفعہ مزار کے احاطے کے اندر جو وہ سبیل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پہ زائرین کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور دیگر مشروبات بھی اس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اگر میرے کیمرہ مین حارث آپ کو دکھائیں تو یہ وہ مزار کے احاطے کا جو وہ انٹرنس پوائنٹ ہے، جہاں پہ تمام زائرین کی جو آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑی تعداد میں ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ شہر کے مختلف مقامات سے یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر اپنے جو وہ شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ زائرین ہیں جن کی آمد کا سلسلہ جو وہ صبح سے ہی جاری ہے۔ یہاں سے اگر میں آپ کو آگے لے کے چلوں تو یہ تمام مزار کا احاطے کا سسٹم ہے، جہاں پہ زائرین آ رہے ہیں، ان کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ دیگر سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بات کیا جائے، سیکیورٹی کے بھی جو وہ بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں پولیس اہلکار موجود ہے، رینجرز کی نفری موجود ہے، جبکہ باہر جو وہ روڈ کے اوپر ٹریفک اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں کسی قسم کی جو وہ ٹریفک کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے۔ جبکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، بڑی تعداد میں ملک بھر سے جو وہ زائرین آ رہے ہیں اور شرکت کر رہے ہیں، جبکہ یہ سلسلہ جو وہ 3 روز تک جاری رہے گا، جس میں میلاد محفل، نعت خوانی اور قوالی کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ کچھ زائرین ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود بھی ہیں، ان سے اگر ہم بات کرنے کی کوشش کریں، مجھے بتائیے گا سر، آپ جو وہ کہاں سے جو وہ شہر سے آئے ہیں اور زیارت کے لیے آئے ہیں، اور کتنا جو وہ اس عرس کا جو وہ انتظار کرتے ہیں؟ مورو سے ہیں، مورو سے جو رہتے ہیں کراچی میں ہیں، مورو سے آئے ہیں۔ مورو سے آئے، مجھے بتائیے گا اس عرس کا جو وہ کتنا سال بھر میں جو انتظار رہتا ہے اور بڑے پیمانے پہ عرس ہوتا ہے، ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ گاؤں سے بھی اور آ رہے ہیں، صحیح ہے، اس کے انتظار میں کھڑے ہیں، آ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ مورو سے آئے ہیں جو کہ کراچی سے جو بہت دور کا علاقہ ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے سندھ سے جو ہے وہ اور بھی دیگر جو فیملی کے ہیں لوگ وہ بھی آ رہے ہیں، جو ساتھ ہی اس عرس کا جو وہ شرکت بھی کریں گے۔ کچھ اور زائرین بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، ان سے اگر میں بات کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ لوگ عرس جو وہ 3 دن تک جاری رہتا ہے، جہاں پہ ملک بھر سے لوگ آتے ہیں، کچھ اور زائرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ 3 دن کا جو عرس ہے، اس میں کتنے کہاں سے جو وہ شرکت کری ہے اور کتنا جو وہ انتظامات کو دیکھ رہے ہیں؟ کیسے مانا، کیا بولوں؟
जी बिल्कुल, कुछ ज़ायरीन हमारे साथ मौजूद भी हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश करी, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे इंतज़ामात के हवाले से मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, रेस्क्यू के कैंप लगाए गए हैं, जबकि दीगर और भी बहुत सारे ऐसे कैंप लगाए गए हैं जो ज़ायरीन की जो है वो फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। जबकि लंगर के हवाले से मैं बात करूँ तो सुबह 7 बजे से यहाँ पे लंगर का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, जहाँ पे आने वाले ज़ायरीन के लिए मज़ार के अहाते की बैक साइड के ऊपर जो वो लंगर का एहतमाम किया गया है। सुबह 7 बजे से यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो वो लंगर की जो वो चीज़ें लाई जा रही हैं, जिसमें जो वो बिरयानी है और दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि लंगर के हवाले से यहाँ पे लोग भी लाते हैं, जबकि मज़ार की अपनी तरफ से भी लंगर का एहतमाम किया जाता है जो कि ज़ायरीन आए हैं उनके लिए। जबकि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे मज़ार के ऊपर, हमने अंदर भी गए, लोगों से भी बात करी, उनका भी ये कहना है कि हम हर साल इस उर्स का जो वो बेसब्री से इंतजार करते हैं, जो कि इस्लामी तारीख के मुताबिक 21, 22 और 23 ज़िलहज को जो वो ये उर्स रखा जाता है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो ये 29 जून तक ये उर्स जारी रहेगा, जिसके अंदर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है, जबकि नात ख्वानी भी होती है, मिलाद भी होती है और कवाली का समा भी यहाँ पे लगता है। इस बार जो वो गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी अब से कुछ देर बाद इस उर्स का जो बाकायदा इफ्तिताह भी करेंगे, जो कि 3 रोज़ तक जारी रहेगा। कुछ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि इनकी फैसिलिटीज़ के लिए जो वो बहुत सारे इंतजाम भी किए गए हैं। 29 जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी फरहान खान, आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स में जाली भर्ती का इंकशाफ हुआ है। लड़काना के रिहायशी ने कराची के एड्रेस पर नौकरी हासिल की। 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट के तमाम कागजात जाली निकले। जिला शर्की के जाली डोमिसाइल और PRC पर 14 ग्रेड में भर्ती हुआ था। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयमा खान से। आयमा, ये इंकशाफ कैसे हुआ और अफसर कब से महकमा तालीम में नौकरी कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट के जो है वो तमाम कागजात जाली निकले हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल में जाली भर्ती का जो है वो एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। लाड़काना के रिहायशी ने जो है वो कराची के पते पे जो है वो नौकरी हासिल की हुई थी। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल के खत पर जो है वो DC ईस्ट ने कागजात जाली करार दे दिए। इमरान अजीज सोलंगी का शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता भी जो है वो लाड़काना का है। इमरान सोलंगी ने जो है वो जाली डोमिसाइल में खुद को जो है वो गुलिस्तान जौहर का रिहायशी जाहिर किया हुआ है, जिस पर इमरान सोलंगी के जाली कागजात और तस्दीक का लेटर जो है वो हासिल कर लिया गया है। इमरान सोलंगी 13 साल से महकमा तालीम में जो है वो मुलाजमत भी कर रहा है। जाली कागजात पर भर्ती शख्स 14 से तरक्की करके 17 ग्रेड पर जो है वो इस पर पहुंच चुका है। इमरान सोलंगी पर 1 करोड़ 13 लाख रुपए की जो है वो फुटबोर्ड के इल्जामात भी हैं। इमरान सोलंगी ने महकमा तालीम के फंड्स में बड़े पैमाने पर जो है वो करप्शन भी की है। 1 करोड़ 13 लाख की रकम से खरीदे गए सामान का जो है वो कोई सबूत भी सामने नहीं आया है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल से सेक्रेटरी तालीम को कार्रवाई के लिए खत भी लिख दिया है, जबकि खत में ये लिखा गया है कि इमरान सोलंगी बड़े पैमाने पर जो है वो करप्शन में मुलव्विस है। इमरान सोलंगी की करप्शन से कौमी खजाने को जो है वो नुकसान भी पहुंचा है। खत में मजीद ये भी लिखा गया है कि इमरान सोलंगी से खरीदारी के सबूत मांगे गए, लेकिन जो है वो उनकी जानिब से कोई भी सबूत फराहम नहीं किया गया। ताहम खत में मजीद ये भी बताया गया है कि रिकॉर्ड फराहम ना करना गैर जिम्मेदारी और सरकारी हुक्म ना मानना है। इसके अलावा जो है वो खत में दोनों मामला पर आला सतह की इंक्वायरी की दरख्वास्त भी की गई है। जी, आला सतह की इंक्वायरी की दरख्वास्त भी की गई है। आयमा खान, आपका बहुत शुक्रिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से एहसन इकदाम। पुलिस एहलकारों की हेपेटाइटिस और HIV की मुफ्त स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया। पुलिस अस्पताल के MS डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी को हिदायत कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं MS के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल IG सिंध की हिदायत पर पुलिस अस्पताल गार्डन के MS डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी ने सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को खत लिख दिया है कि जितने भी पुलिस एहलकार हैं सिंध भर में, खासतौर पे कराची भर में, लेडीज़ पुलिस एहलकार और मर्द एहलकार जितने भी हैं उनकी स्क्रीनिंग करने का फैसला किया गया, ताकि अगर उनमें HIV एड्स या हेपेटाइटिस होता है तो उनकी फौरी जो है तशखीस होकर उनको प्रॉपर तरीके से उनका इलाज किया जाए। और IG सिंध की जानिब से ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है ताकि उनको फौरी तौर पर इलाज मुयस्सर हो सके। तो इस हवाले से हमारे साथ पुलिस अस्पताल गार्डन के MS डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी मौजूद है, इनसे पूछेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, आप बताइए क्या IG साहब ने हिदायत की और कितना अच्छा इकदाम है ये? जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है IG साहब का। तो IG साहब ने हिदायत दी थी कि इस तरह हम जो है स्क्रीनिंग करें, फिर उसके हमने स्क्रीनिंग के हवाले से हमने लेटर्स लिखे। तो अभी वो शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल के हवाले से हम कैंप लगाएंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। जैसे वो IG साहब ने कहा, तो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और हेपेटाइटिस के हवाले से उनको जो भी अगर बीमार हो गए ऐसे, तो उनकी प्रॉपर टाइमली उनका ट्रीटमेंट होगा और इस चीज़ को राज में रख के उनको ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो खुद भी जो सेफ रहें और उनकी वजह से ये बीमारी किसी और को भी ना फैले।
बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी, जिनका कहना था कि ऐसे मरीजों का इलाज किया जाएगा जो कि मर्द और पुलिस एहलकार हेपेटाइटिस और HIV एड्स का शिकार होंगे, उनको उनका सीधा राज रखा जाएगा, उनका नाम, और उनका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाएगा। क्योंकि शिकायत ये आई थी कि बड़ी तादाद में हेपेटाइटिस और HIV एड्स का शिकार होकर एहलकार जो है मुख्तलिफ जगहों पर अपना इलाज करा रहे थे। उनको तमाम को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए IG साहब ने यह हुक्म दिया, और जिसके बाद MS ने यह खत लिख दिया। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि तमाम एहलकारों को जो बेहतर इलाज की सहूलत मुयस्सर हो सकेगी। स्टील मिल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील का फैसला। वफाकी वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील के लिए तजवीज़ तैयार कर ली। वफाकी वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल के बोर्ड डायरेक्टर की असरिन तश्कील के लिए तजवीज़ वफाकी काबीना को भेज दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। स्टील मिल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील का फैसला। वफाकी वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील के लिए तजवीज़ तैयार कर ली। वफाकी वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल के बोर्ड डायरेक्टर की असरिन तश्कील के लिए तजवीज़ वफाकी काबीना को भेज दी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन डिवीज़न या कोई और 20 ग्रेड का अफसर शामिल। PIDC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पाकिस्तान मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी शामिल हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोज़ वायरल करने का केस। दानिया शाह जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश हो गईं। जज की अदम हाजिरी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। दानिया शाह के वकील ने FIA के चालान से यासिर शामी का नाम निकालने पर तशवीश का इजहार कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें, आमिर लियाकत की नाजिबा वीडियोस वायरल करने का केस है, जिसकी समाअत आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई है, जहां पर जो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी थी दानिया शाह, वो भी अदालत में पेश हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दानिया शाह के वकील एडवोकेट लियाकत गबोल साहब। उनसे बात करते हैं। गबोल साहब, क्या कार्रवाई हुई है? हमने देखा था चालान भी जमा हुआ है, यासिर शामी की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत हुई है, उस पर भी जो है वो तारीख हो गई है। देखें, डीजे साहब, आपको पता है कि वेकेशन चल रही है, डीजे साहब भी छुट्टी के ऊपर हैं और हमारी जो जज साहबा हैं वो भी ट्रेनिंग के ऊपर गई हुई है इस्लामाबाद। तो आज ये मैटर फिक्स था चार्ज फ्रेम के लिए कि आज यासिर शामी और दानिया शाह पे दोबारा फ़र्ज जुर्म ऐद होनी थी, ताकि फ़र्ज जुर्म ऐद हो जाती तो उसके बाद नेक्स्ट डेट के ऊपर जो ना हम इसमें विटनेसेस के बयानात करवाते। लेकिन लास्ट डेट पे ये हुआ था कि तफ्तीश अफसर ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की थी, जिसके अंदर उसने यासिर शामी का नाम बिल्लू इंक में लिखा था कि यासिर शामी के खिलाफ ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले और इसको जो है हमने गलत चलान किया है। उसके ऊपर कंप्लेनेंट के वकील ने और यासिर शामी का वकील भी पेश हुआ था, तो अदालत ने उसको डिक्लाइन किया था और तफ्तीशी अफसर को शोकाज इशू किया था। तो आज की सूरत हाल ये है कि यहाँ जज ना होने की वजह से जो ना अदालत में हमारी 18 जुलाई 2024 तक जो है समाअत मुलतवी हुई और आइंदा तारीख के ऊपर जो है दोनों मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्ज जुर्म ऐद की जाएगी। और यासिर शामी की बेल भी लगी हुई थी, वो भी मुलतवी हुई 11 जुलाई तक जो ना। और तो बताइए, जो शोकाज नोटिस कोई जवाब जमा करवाए तो कोई अदालत की जानिब से कोई ऑर्डर आया या अभी तक ये सिर्फ जमा? देखिए, लिंक जज के पास ये मैटर था, उसने शोकाज इशू किया था। तफ्तीशी अफसर ने बाद में ऑफिस के अंदर उस शोकाज का रिप्लाई दिया है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, अदालत ने उसको फाइल किया हुआ है। अब जिस दिन जो है ना 18 जुलाई को जज साहब आएंगे तो उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। इस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसने एक बेगुनाह लेडी को चालान किया है और जो इसमें मुलविस शख्स है उसको जो है आपने जो है ना इस केस के अंदर जो है ना निकालने की कोशिश की है, क्योंकि यासिर शामी की वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसके अंदर वो कहता है कि मैंने ये वायरल की है और ये मैंने बिलर करके जो है ना वो चलाई है। कोई चीज़ हमारे खिलाफ ही नहीं है। आपने जो है सिर्फ कंप्लेंट के स्टेटमेंट के ऊपर जो है ना हमें मुल्ज़िम बना के खड़े कर दिया। आपने का यही कहना था कि जो इल्ज़ाम है झूठा है, वे बुनियाद है। इनका ये भी कहना था कि जज की अदम हाजिरी के बायस अब जो समाअत है वो 18 जुलाई तक मुलतवी हो चुकी है। शोकाज नोटिस जारी किया गया था गुज़श्ता समाअत में लिंक जज की जानिब से, जिस पर जो FIA के तफ्तीशी अफसर है उसने जो है उसका जवाब भी जमा करवा दिया है। ताहम जज की अदम हाजिरी के बायस अभी तक वो फाइल हुआ है, उस पर कोई ऑर्डर भी नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर जिला केमाड़ी जुनैद इकबाल खान की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की तैयारियों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। इजलास में क्या फैसले हुए जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की आमद है और इस सिलसिले में केमाड़ी टाउन की ज़िला इंतज़ामिया ने जो है एक इजलास तलब किया, जिसमें तमाम मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस को बुलाया गया था, उनसे उनके मसाइल मालूम किए गए। और ये जो सारा इजलास हुआ, ये डिप्टी कमिश्नर जुनैद इकबाल खान जो कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के हैं, इनसे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, मीटिंग तलब की आपने, उसमें क्या चीज़ें सामने आई, किस तरह सॉर्ट आउट हुए मसले और आगे जाके जो है फैसिलिटेट किस तरह कर पाएंगे? देखिए, हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज
म्यूनिसिपल सर्विसेज और यूटिलिटी सर्विसेज के रेप्स मौजूद थे। जो हमें शिकायत हमें मिली उस मीटिंग में वो ज़्यादातर म्यूनिसिपल सर्विस और यूटिलिटी सर्विस, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी, बिजली, सुवेज वाटर और इस तरह की कंप्लेंट्स हमें रिसीव है, वो हमने नोट कर दिए हैं और जो नुमाइंदे बैठे थे हमने उनको अभी डायरेक्शंस पास कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स खुद विज़िट करेंगे ये सारे पॉइंट्स, इमाम बारगाह, मदरसा और रूट का मैं भी जो ज़िले के नुमाइंदे उनके साथ मैं विज़िट करूँगा कि इनके इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर सकें। बिल्कुल, जुनैद इकबाल खान जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं कीमाड़ी के, बता रहे थे कि तमाम रिहर्सल जो है वो मुकम्मल कर दी गई है और तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेके मुहर्रम उल हराम के हवाले से अज़ादारान को फैसिलिटेट किया जाएगा। जी, PCCI के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह कर दिया। टैक्स फ्रॉड पर FBR को इख्तियारात देने की सख्त मुखालिफत की है। एक्सपोर्टर्स को फ़िक्स टैक्स रजीम में बरकरार रखने की तजवीज़ दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने एक्सपोर्टर्स की मकामी सप्लाई पर सेल्स टैक्स की छूट बरकरार रखने की बात मान ली है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। वफाकी बजट पर कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे FPCCI की पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड ने जो तजावीज़ दी थी उस पर कुछ मान लिए गई हैं बातें और कुछ पे अभी अमल दरामद होना बाकी है। और जो FPCCI की पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मियां जाहिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है? एक्सपोर्टर के तहफ़्फ़ुज़ात थे फिक्स टैक्स रिजीम पे, फिर EFS की थी और क्या क्या चीज़ें मान ली हैं? देखिए, हमारी कुछ तो चीज़ें हमने तकरीबन 30 के करीब तजावीज़ इनको दी थी बजट में और हमने एक खैर मकदम भी किया था बजट का, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि जो टैक्स फ्रॉड के ऊपर ये जो आप 10 साल कैद और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बड़ी ड्रैकोनियन है और इससे बिजनेस कम्युनिटी भाग जाएगी मुल्क से और ये नहीं होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है, देखें, टैक्स फ्रॉड जो करता है उसको बिल्कुल आप बुक करें, लेकिन बात यह है कि टैक्स फ्रॉड होगा कैसे, पता कैसे लगेगा कि कौन उसको बुक कर रहा है। जो लोग इसके ऊपर ये इल्ज़ाम करेंगे तो एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है ना कि जो हमारे मुल्क का सिस्टम है और रैशनल्स होना चाहिए। एक तो ये, दूसरी बात ये कि वो फिक्स टैक्स रिजीम से एक्सपोर्टर्स को ख़त्म करने का मतलब ये है कि आपने जहाँ और बहुत सारे ज़िंदगी के शोबों को हिला जुला दिया है तो अब आप एक्सपोर्टरों को भी हिला रहे हैं कि ताकि जो एक काम स्मूथ वर्किंग किसी की चल रही है तो उसको भी डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो आई थिंक ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो फिक्स टैक्स रिजीम में ना हो और रेगुलर टैक्स सिस्टम में आए तो उसमें कोई टाइम दें ताकि वो लोग जो है अपने सिस्टम को उस तरीके से थोड़ा एडजस्ट कर लें। 1-2 साल का उसमें टाइम दें, अभी फ़िलहाल उसको FTR में जारी रखें। इसी तरीके से उनकी जो लोकल सप्लाईज़ हैं एक्सपोर्टर्स की उसको इन्होंने सेल्स टैक्स एग्जम्पशन से खारिज कर दिया था। वो हमें खुशी है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने कल उस मुतालबे को मान लिया है, वो अच्छी बात है। फिर इसी तरीके से मैं इसमें भी खैर मकदम करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने 240 अरब रुपए की जो क्रॉस सब्सिडी थी उसको ख़त्म करके और 10 रुपये 69 पैसे इंडस्ट्री के लिए रेट कम कर दिया है। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम तजावीज़ भेजी गई थी फेडरेशन हाउस की जानिब से और वफाकी हुकूमत बजट में जो कुछ मान ली गई और कहा है फिक्स टैक्स रिजीम के ऊपर भी अभी बातचीत जारी है जिसमें कहा है कि जो एक्सपोर्टर है उनके खदशात को दूर किया जाएगा, लेकिन इसमें 1 से 2 साल ताखीर का कहा गया है कि इस पर माना जाए। साथ ही जो सप्लाई साइड है उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर कर दिया गया है। जी, गोल्ड के खाम माल पर 18% सेल्स टैक्स का नफाज नामंजूर। गोल्ड एक्सपोर्टर्स ने कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। बिल्कुल, देखें 18% सेल्स टैक्स पर गोल्ड एक्सपोर्टर्स ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हबीबुर रहमान, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, टैक्स का मुसलसल देखा जा रहा है कि बोझ डाला जा रहा है, एक्सपोर्टर्स भी काफ़ी परेशान है, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मामला है क्या, ज़रा तफसील? ये सेल टैक्स की एग्जामिशंस थी जो कि 2024 फरवरी 22 फरवरी को ये वापस ले ली गई रातों रात, हमें कोई इतला दिए बगैर। और ये इंटरेस्टमेंट स्कीम में गोल्ड फॉरेन पार्टी का होता था और ये हमारे एक्सपोर्टर वो लेके आते थे, इंपोर्ट करते थे और 120 दिन के अंदर इस पर वैल्यू एडिशन लगा के इसको मतलब ज्वेलरी की शक्ल में इसको एक्सपोर्ट कर देते थे। उस पे उस रॉ मटेरियल पे एग्जम्पशंस थी सेल टैक्स की जो कि सालों से चलती हुई आ रही थी। अचानक उन्होंने ख़त्म कर दिया और 18% लागू कर दिया। 22 फरवरी तक पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर कराची में 20 किलो के करीब गोल्ड आया इस एग्जम्पशन ख़त्म होने से पहले, यानी 1 दिन पहले तक आ गया, जो कि 3 महीने तक कराची एयरपोर्ट पर पड़ा रहा। फिर वापस उसको री एक्सपोर्ट किया, वापस भेजा, फ़ॉरेन पार्टी ने वापस मंगवा लिया अपना गोल्ड। तो उसका कई पाकिस्तान को तकरीबन $5 लाख का जो ज़र मुबादला हासिल होता वो ज़ाया हुआ और वो ऑर्डर जो है
ہندوستان کو انڈیا کو موو ہو گئے وہ آرڈر، اور سالوں کے اندر ہمارے ایکسپورٹرز نے یہ محنت کر کے ایک لائن بناتے ہیں، اپنے بائرز بناتے ہیں، اور ایف بی آر کے اس اقدام سے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ بالکل دیکھیں 4 ماہ سے گولڈ کی ایکسپورٹ بھی صفر رہی ہے اور شدید اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سیلز ٹیکس کی شرائط کو ختم نہیں کرتی تو پھر جو گولڈ ایکسپورٹر ہے وہ دیگر ممالک میں منتقل ہونے کا سوچ رہا ہے۔ جی بات کریں گے کراچی میں جاری ہیٹ ویو کے حوالے سے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے پرانے شیڈول کے مطابق پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈز کو درخواست گزار سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی سے روک دیا۔ عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈز اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے 27 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے پرانے شیڈول کے مطابق پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواست کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کو درخواست گزار سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی سے روک دیا۔ عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈز اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین سے 27 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ وکیل درخواست گزار کا موقف۔ سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کو سندھ اربن ایموول پراپرٹی ایکٹ کے تحت پراپرٹی ٹیکس کے دے سکتے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ نے ہمیں 15 لاکھ روپے پراپرٹی ٹیکس جمع کرانے کا کہا، وکیل درخواست گزار۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سندھ حکومت نے کنٹونمنٹ بورڈ کو درخواست گزار سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی سے روک دیا۔ کنٹونمنٹ بورڈز کی جانب سے پرانے شیڈول کے مطابق پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواست کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کو درخواست گزار سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی سے روک دیا۔ چھوٹے کاروباری ادارے ملکی معیشت کی مضبوطی کا سہارا۔ چھوٹے اور متوسط کاروباری اداروں کا آج عالمی دن۔ کراچی چیمبر نے کہا، بلند شرح سود اور بجلی کے بھاری ٹیکسوں نے چھوٹے تاجروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ دیکھتے ہیں کاوش میمن کی رپورٹ۔ چھوٹا کاروبار ملکی معیشت میں بڑا کردار۔ مائکرو اور درمیانے حجم کی انٹرپرائزز کا عالمی دن۔ معاشی نمو، روزگار کے مواقع کی تخلیق اور غربت میں کمی کے حوالے سے ایس ایم ایز کا کردار کلیدی قرار۔ ملکی جی ڈی پی میں 40% اور ایکسپورٹ میں 25% شراکت دار۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے نائب صدر تنویر باری نے کہا کہ ایس ایم ایز کا معیشت میں کردار اہم ہے، مگر ان کو بینکوں سے کریڈٹ بہت کم ملتا ہے۔ سینئر نائب صدر الطاف غفار بولے، معاشی چیلنجز کی وجہ سے ایس ایم ایز مشکلات کا شکار ہے۔ ایس ایم ایز کو جو ہے پاکستان میں جو ہے لون ملنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس میں جو ہے زیادہ تر جو لون اٹھا رہے ہیں وہ گورنمنٹ لے لیتی ہے، تو اس کے ایس ایم ایز کو لون نہیں مل پاتا۔ ہمارے ملک میں جس طرح ہم کو معیشت کو چیلنجز درپیش ہیں، تو اس میں ایک طرح سے ایس ایم ایز کو بہت نگلیکٹ کیا گیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ مسائل میں سب سے پہلے ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو کہ سب کو معلوم ہے، اس میں ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے یہاں ٹیکسیشن ریٹس ہیں وہ اتنے سپریسو ہیں کہ ایس ایم ایز اس نیٹ میں آنے سے گھبراتے ہیں یا وہ راستے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح اس سے فرار حاصل کی جائے۔ تاجر رہنما فہیم نوری بولے، ایس ایم ایز کا گلا ہمیشہ گھوٹا گیا، حکومت نے کبھی چھوٹے تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے۔ مطلب ایس ایم ایز کے لیے مشکلات اتنی ہیں کہ پروفیشنل ٹیکس، ایکسائز ٹیکس، انکم ٹیکس، پانی کے بل، بجلی کے بل، مطلب کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہو گیا اس سٹی کے اندر، اس ملک کے اندر خاص طور پہ، جو آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرتے کرتے آپ اپنے ملک کی کو دیوالیہ کر رہے ہیں۔ صنعت کاروں نے ایس ایم ایز کے فروغ کو معاشی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ کیمرہ مین قمر عابدی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔